Hello students, today we'll discuss the new topic respiration. But before that, I would like to connect the older topic as both the topics, nutrition and respiration, are interconnected. We have already seen that we intake food in the form of nutrients that gets digested in our body, in our digestive system, to form macromolecules and micromolecules, and these macromolecules and micromolecules of nutrients are used by various cells and tissues for various life processes activity. Then how that happens and what is the use of this food molecule, how does it get oxidized to produce energy molecule, these things we will study in respiration. Yes, तो अगर हमें रेस्पिरेशन के बारे में जानना है बेटा, तो रेस्पिरेशन का कनेक्शन सीधा सीधा आपके न्यूट्रिशन प्रोसेस के डाइजेशन से भी है. यस, respiration is the process by which the food taken through nutrition get oxidized to release energy for performing various activity. मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा, जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो कि डाइजेस्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैन दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय ब्लड सेल्स टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी. तो ये जो ब्लड सेल्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी मिक्स होता है, इसलिए हम इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है. इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी है, प्लस ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स के पास कैरी कराए जाते हैं ताकि वो एनर्जी रिलीज़ करे, और ये एनर्जी हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है, भले वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेशन, अब तक आपने जूनियर क्लासेस में यही सीखा होगा बेटा कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसे रेस्पिरेशन नहीं बोला जाता है, इसे ब्रीदिंग बोला जाता है. इसे क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जब सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है या ऑक्सीजन और जो फूड मॉलिक्यूल है यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल, ये जब पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इस फूड मॉलिक्यूल का, और उससे क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ऑब्वियसली, लेकिन इसमें जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हमारे लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कहाँ से होती है एंड हाउ डज़ इट एंड्स टू कन्वर्ट इनटू अ एटीपी मॉलिक्यूल. तो ये पूरा प्रोसेस हम जो है वो रेस्पिरेशन में सीखेंगे इन 4 steps. Yes, in first video we'll learn the basics, what is the meaning of respiration and how does respiration takes place in plants, terrestrial animals, aquatic animals, insects, and little bit basic. Okay, in second video we will learn detailed study about how does exactly aerobic and anaerobic respiration takes place through chemical pathway. Yes, through chemical pathway. In third video I will tell you the activity, exactly how does the cellular respiration takes place. And in last video, yes, in last video we will learn in detail about the mechanism and process of respiration that takes place in human body, So let's start quickly about the respiration process in general. So if I have to define respiration, so respiration is defined as the process of biochemical oxidation of nutrient in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the cells to release energy for metabolic activities. That process is called as respiration. Yes, I am repeating one more time beta. Respiration is defined as the process of biochemical oxidation. Keep that in mind, biochemical oxidation of nutrients
in the presence of specific enzymes, at optimum temperature in the cells to release energy for metabolic activity. This thing is called as respiration. If I have to simply explain in a chemical equation, then I can explain like this: food plus oxygen, yes, food plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. Energy is given in the form of ATP molecules, which we'll learn in our next video. So how does this takes place? In this, biochemical oxidation takes place of glucose. Glucose is your energy nutrient which provides energy in large quantity. Yes. So ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है कम्प्लीटली, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, एंड उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ये सब में अलग होता है. Some organism use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water, while others do not. देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म, या इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल ईस्ट है, या कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिस्पायर करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, लेकिन उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अगर मेरे को डिफरेंस बहुत क्लियरली बताना है तो आगे तो आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ. वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. बट अगर हम बात कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट होता है एल्कोहल. वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एल्कोहल. So let's move ahead. If I have to talk about how does respiration takes place in plants, तो plants को भी रिस्पायर करना पड़ता है. They also need energy. तो plants में मैंने आपको न्यूट्रिशन के टाइम भी एक्सप्लेन करा है. There are special cells called as stomata where exchange of gases takes place. Yes or no? Stomata is present beneath the leaf surface as well as in the green parts of प्लांट्स. तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा. यहाँ तो ये तो समझ में आ गया कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है उसमें स्टोमेटा सेल्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं. बट जो प्रैक्टिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली 1 मार्क के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. दैट हाउ डज द ट्री ट्रंक, अगर आपने ट्री ट्रंक देखा होगा, इट्स वेरी थिक. हाउ डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दिस ट्री ट्रंक. हाँ, तो ये जो ब्राउन ट्री ट्रंक होते हैं, तो अगर आप लोगों को ध्यान से देखा होगा तो यू कैन सी सम बबल्स और swollen part over the tree trunk. These are called as lentils. And exchange of gases कहाँ लिया जाता है? इन lentils में. इवन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है जो कि इंश्योर करते हैं कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है सेल्स का वो एयर से हो सके. अगर हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज की रूट्स में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स, तो विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स? देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, यस. डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है.
जो कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर एंड पासेज इनटू रूट सेल्स फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑन इनटू द सॉइल। अगर हम स्टेम्स की बात कर रहे हैं तो स्टेम्स का मैंने आपको पहले ही क्लियर करा है। जो ट्रंक होता है, जो ब्राउन पार्ट होता है, उसमें लेंटिसिल्स नाम का एक पार्ट होता है, लेंटिसेल्स, जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है इजीली। और ग्रीन प्लांट्स में तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस। अगर हम बात कर रहे हैं लीव्स की तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो टेक प्लेस करता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा इन विच किडनी शेप गार्ड सेल्स आर देयर, जिसके अंदर से ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होता है। आपको ये ध्यान रखना है, स्टोमेटा जो है इसका 2 वे में यूज़ होता है इन गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टोमेटा के सेल्स है या गार्ड सेल्स है, दे हेल्प टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। दे हेल्प टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। वेयर एज रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो क्या करते हैं, स्टोमेटा सेल्स क्या हेल्प करते हैं, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको पहले ही बताया था, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो डे टाइम में स्लो होता है प्लांट्स में, एंड नाइट में वो स्पीड अप होता है, क्योंकि डे टाइम में मोस्टली जो प्रोसेस अंडरटेक होता है प्लांट्स में, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट respiration in animals, then if we have to talk about for efficient exchange, some animals respire through their skin. अगर आपको इसका एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस होते हैं जो एम्फीबियंस, यस और नो, दे रिस्पायर थ्रू स्किन। उनकी स्किन मॉइस्ट होती है एंड इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इफ़ वी टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, देन दे हैव स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ओवर द साइड्स ऑफ बॉडी कॉल्ड एज spiracles which help in gaseous exchange. And if we talk about aquatic animal, for example fishes, yes or no, एक्वेटिक एनिमल्स, ये क्या करते हैं बेटा, ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होता है। दे कैन नॉट ब्रीथ द ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन एयर। द रीज़न इज़ सिंपल कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्वाइट हाई होता है, एंड जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, इस वहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो लो होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, पर्टिकुलरली मरीन एनिमल्स, दे डोंट रिक्वायर मच ऑक्सीजन, सो दैट्स वाई दे इनटेक द ऑक्सीजन विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर।